Hello everybody, I'm back, Dr. K.K. Agarwal, President, Confederation of Medical Association of Asia and Oceania, past National President, Indian Medical Association, and President, Heart Care Foundation of India. And you are watching Med Talks with Dr. K.K. Non-stop 7 p.m. show, 228th episode and 1817th COVID edition. Let's have the headlines of the topic of the day. आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड में इतनी बड़ी ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर में लिखा हुआ है ग्लूटेन और उसके ऊपर में लिखा हुआ है काटा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ग्लूटेन खाने को क्यों मना कर दिया है। मेरा क्या बिगाड़ा था कि मेरे डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर तक तुम ग्लूटेन, गेहूं, जौ नहीं खाओगे। ये हमारा सब्जेक्ट है आज का। इससे पहले कि आई इंट्रोड्यूस यू द स्पेशल गेस्ट ऑफ टुडे, लेट अस वॉश आवर हैंड। अतिथि देवो भव। So S for सीधा, U for उल्टा, M for मुट्ठी, A for अंगूठा, N for नाखून, and K for कलाई. Once you have done Suman K, we know that now we can advise and introduce our speaker of the day. A close friend, Dr. Neelam Mohan, a BC Roy National Awardee. She is currently the Director, Department of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Liver Transplantation at Medanta at Gurgaon. She is an excellent orator, excellent clinician, researcher, popular academician, teacher, administrator, and social worker, and one of the most quoted women in media in India. And we are having a Women's Day also. She is the President, Commonwealth Association of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, President of Children, Intestinal and Liver Disease Society. She is the co-chair of Pediatric Committee of STW and Endeavor by Government of India and ICMR, member National Health Authority in the Clinical Specialist Committee. She is advisor to National Board of Examination, MRCPH and DNB examiner. She is the founder chairperson of Women Forum of GAPIO. She is the founder secretary of Indian Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. And she has been instrumental in setting up the fellowship and FNB in pediatric gastroenterology and hepatology in India. Namaskar Neelam ji, आपका स्वागत। Thank you so much. Thank you so much, KK. तो सब्जेक्ट हमारा बड़ा सिंपल है आज की डेट में। जिसको देखो वो कहता है कि मेरे को बोला है गेहूं मत खाओ। तो अब लोग कंफ्यूज्ड हैं whether this is actually a off-week diet or they are actually suffering from a disease called celiac disease, and which should be picked up in pediatrics, but now we are picking up even in elderly age. So tell us something about how will a person understand that my child is having celiac disease, कि मेरे को बच्चे को क्या पहचान में आए कि उसको पता लगे कि उसको celiac disease है. This will be a program mixed in English and Hindi, so you can go ahead howsoever Right. you are comfortable. Right. Thank you very much. And I really like that honesty with you, where you said, जिसको देखो कह रहा है. तो that was a beautiful statement जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि क्या वो कुछ आजकल फैशन है, फैड है, बिकॉज थोड़े लोग ग्लूटेन फ्री डाइट खाना एक तरीके का फैशन भी समझ रहे हैं, और क्या वो सच में उनको कोई बीमारी है जिससे वो नहीं खाना चाहिए. आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट था, बिकॉज जब हम सीलियक बोलते हैं, सीलियक के साथ हम एक वर्ड डिजीज लगा रहे हैं और हम एलर्जी वर्ड नहीं लगा रहे हैं. तो ये समझना चाहिए कि कभी कभी जब आप कोई टेस्ट करते हैं और आप कोई एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी कभी कभी आप आउटग्रो कर सकते हैं, मतलब आपकी खत्म हो सकती है. और एलर्जी का मतलब थोड़ी सी रैश हो गई या कोई और प्रॉब्लम जो आप सोचते हैं आपको एलर्जी है, लेकिन वेरी रेयरली एलर्जी जब तक एनाफिलैक्सिस नहीं होती वो जानलेवा नहीं होती है. लेकिन जब हम सीलियक डिजीज कहते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है. दिस इज मोर ऑफ अ डिजीज विच अगर आप उसकी मतलब अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे नहीं गए
और अगर आपको वो डिजीज है तब आप आगे जाके वो ऑलमोस्ट कैंसर तक पहुंच सकती है। सो दैट इज द डिफरेंस। बेसिक आपको समझना चाहिए कि वो या तो फैशन के लिए नहीं है या डिजीज के लिए नहीं है, मीन्स लाइक एलर्जी, तो दैट इज अ डिजीज। जब मैं ये बोलती हूँ, मैं भी काफी देखती हूँ, इसको डायग्नोज करने के लिए देर आर 4 or 5 थिंग्स आई वुड से। वन इज योर सिम्टम्स, कि आपको क्या सिम्टम्स है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, कभी कभी आप एसिम्टोमेटिक है, लेकिन अगर आपके भाई बहन को हुआ हो तो हम आपको स्क्रीन कर देते हैं और स्क्रीनिंग पे हम डिटेक्ट करते हैं कि आप हो। सो दैट इज डिफरेंट, और आज की डेट में मैं वो कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगी। मैं मेनली आपको बताऊंगी सिम्टम्स। उसके बाद डॉक्टर एक टेस्ट करता है जिसको ब्लड टेस्ट में हम आपको बोलते हैं सीरोलॉजी, मतलब वो ब्लड टेस्ट जिसमें हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज देख रहे हैं। और अल्टीमेटली डायग्नोसिस होती है हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी से, और वेरी रेयरली हम जेनेटिक्स करते हैं। और इसके बारे में हम बात करते हैं एस के आसमी की, किसके बारे में जो सवाल। सो मेरा सवाल इस वक्त में है कि एसिम्टोमेटिक आई कैन अंडरस्टैंड, अगर सिम्टम्स होंगे तो बच्चों में क्या सिम्टम्स होंगे, बड़ों में क्या? करेक्ट। सिम्टम में फर्स्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो एक हमें इंटेस्टाइनल सिम्टम समझ लेने चाहिए और एक हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स बात करते हैं। इंटेस्टाइनल में सबको आसान लगता है कि मैं आपको बोलूं कि हमारे पेट के अंदर बेसिकली इस तरीके की एक उंगलियां बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं विलाई। जैसे एक साड़ी है, साड़ी को मैंने लपेट दिया तो वो साड़ी इतनी शेप की बन गई, लेकिन अगर मैं उस साड़ी को खोलूंगी तो एक्चुअली वो 6 मीटर की है। सिमिलरली हमारी आंत जो आपको इतनी लंबी 6 फीट जो भी लग रही है, उसको भी भगवान ने हमें एब्जॉर्प्शन की शक्ति बनाने के लिए विलस बना दिया है। इस तरीके की फोल्ड है। तो जब ये सीलियक डिजीज होती है तो ये फोल्ड कट जाते हैं और वो ऐसे बन जाती है। तो आप देख रही हैं कि आंत इतनी छोटी हो गई कंपेयर टू इतनी जो थी। तो इतनी लंबी को मैं छोटी कर दी, दैट मीन्स मेरी हजम करने की, मेरी एब्जॉर्प्शन करने की शक्ति कम हो गई। जब एब्जॉर्प्शन करने की शक्ति कम हो गई तो क्या होगा, मेरे को जो खाना खा रही हूँ वो लगेगा नहीं, मतलब या मुझे खून की कमी हो जाएगी, आयरन की या B12 की, या पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी, पेट में दर्द होगा, बढ़ूंगी नहीं, बिकॉज खाना ही नहीं लग रहा है, जो मैं खा रही हूँ वो लग ही नहीं रहा है क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सो दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स। डायरिया, फेलियर टू थ्राइव, फल फूल नहीं रहा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पेट फूल जाना, पेट दर्द होना, ये सबको समझ आता है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या बेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी होती है। ये हो गया मेजर 70-80%। सीलियक डिजीज को हम हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे हम टीबी इंडिया में कहते हैं कि कुछ भी बीमारी हो, अगर आपको टीबी फिट हो सकता है उस बीमारी में। ऐसे कहावत है कि टीबी किसी प्रकार से भी इंसान को अफेक्ट करता है, ये हम पहले बोलते थे। आजकल काफी हम उस बीमारी पर वी कुड सक्सीड ओवर इट एंड दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट सीन बिकॉज सारा देश, अमिताभ जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अ लॉट। अगर आपकी खांसी लग रही हो तो डिटेक्ट करें नो। अब आज केके का मेन मुद्दा है, केके आपको ये समझाना चाह रहा है कि मैं नीलम समझा रही हूं कि सिर्फ आंतों ही नहीं, बाल से लेके नाखून तक मैं अब आपको स्टार्ट करूंगी। अगर आपके बाल एलोपीसिया, आपके बाल गिर रहे हो, मेरे पास एक लड़की थी जो आई थी, मुझे याद है 13 साल की लड़की थी, उसको एलोपीसिया था सर पे। भगवान ने भला किया, वो एक्चुअली स्किन स्पेशलिस्ट और बड़े टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप जगह पे दिखा रही थी। स्किन इंस्टीट्यूट में उसको हाई फाई दवाइयां, टैक्रोलेमेस, वो स्टीरॉइड सब कुछ लगाया जा रहा था। भगवान की दया से उसको कोई डायरिया हुआ 2-3 दिन का और पेट दर्द की मेरे पास आई। जब वो आई मैंने नोटिस किया कि उसके आंख में खून की कमी और एलोपीसिया है और उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसका टेस्ट किया, उसको सीलियक डिजीज निकला। तो टेस्ट कैसे किया, सीरोलॉजी। तो मैं ये बता रही हूँ या आपको एलोपीसिया हुआ, आंख में मैंने देखा या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन ए की डेफिशिएंसी दिखी, या नाक चपटा हुआ छोटे बच्चे का तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, या होठ कट गए
तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी। जवाहरलाल हो गई तो मैं बोलूंगी आपको ग्लोसाइटिस, विटामिन की डेफिशिएंसी। दांत आपके सही नहीं आ रहे, मैं बोलूंगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हड्डियां आपकी निकल आई, मैं बोलूंगी फल फूल नहीं रहा है। रिब्स आपकी प्रोमिनेंट हो गई, मैं बोलूंगी रिकेट्स हो गया। पेट आपका बाहर निकल आया, बाकी के हाथ पतले, मैं बोलूंगी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। हड्डियां आपकी पांव टेढ़े हो गए, जिसको मैं बोलूंगी रिकेट्स, खोखली हो गई हैं हड्डियां। नाखून आपके टूट रहे हैं, मैं बोलूंगी एब्जॉर्प्शन। और यही नहीं, आप ले लीजिए पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये ले लीजिए आप कंसीव नहीं करना, एमेनोरिया पीरियड्स, और इनफर्टिलिटी, लड़कों में इनफर्टिलिटी और गर्ल्स में कंसीव नहीं करना, ऐसी प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, दौरे, कान में एटैक्सिया, मतलब मैंने क्या छोड़ा आपके लिए, हड्डी, न्यूरोलॉजी, एवरीथिंग आई टोल्ड यू कैन रिजल्ट फ्रॉम सीलियाक डिजीज। तो ये चीज जब आपको लगता है कोई चीज लंबी चल रही है, या आपके फैमिली में, कजन्स में, या किसी को प्रॉब्लम है, तो आप जरूर डॉक्टर को बोले मेरे कजन को ये है, मैं सोच रहा हूं। और नॉर्थ इंडिया में, ये तो सारा देश देखता है के को, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये डिजीज 1 in 150 या 1 in 100, हर 150 मरीज या 100 मरीज में एक देखी जाती है। ये सारे हमने स्कूल के बच्चों पे टेस्ट किए, जो दिल्ली के स्कूल के बच्चे, लुधियाना, पंजाब, यहाँ। लेकिन साउथ इंडिया में जब आप जाएंगे, ये डिजीज रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि ये एक हमारी जेनेटिक, जो आर्यन जीन्स थे, वो जेनेटिक डिजीज के साथ ऊपर से आपको वीट मिली तो तब होगा। साउथ इंडियन में ये ज्यादा जीन्स नहीं है, और अगर कोई नॉर्थ इंडियन जाके साउथ इंडिया में स्टैब्लिश किया हो तो तब उसको हो सकती है, या जो साउथ इंडियन के अंदर ये जीन है और ज्यादा गेहूं खा रहा हो। जब तक आप वो खाएंगे नहीं तो आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि गेहूं के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिन, ग्लूटेन, ये दोनों एक प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर है। उसको आपकी बॉडी पराया समझ के उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई। के ने आपको कोविड के बारे में तो समझाया, एंटीजन एंटीबॉडी, तो आपको समझाने में मुश्किल नहीं होगी। सेम उस एंटीजन, गेहूं की एंटीजन से एंटीबॉडी बनी। ये एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं डायग्नोसिस में कि ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है क्या, और उस तरीके से डायग्नोस करते हैं। अगर एंटीबॉडी है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्मेशन आपकी उस टेस्ट का आपको बायोप्सी से होगा, जिसमें हम देखते हैं कि वो इस तरीके से कट चुके हैं और विलाइज तरीके से नहीं है। बिसाइड्स दिस देयर वर 3-4 चेंजेस है जो डॉक्टर्स के लिए हैं, इस्टोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, आईएल्स, ये सब हम एक्स्ट्रा देखते हैं। बट इन शॉर्ट विलिस है जिसको हम देखते हैं कि किस तरीके से कटे। सो जैसे हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं इतने दिनों से, दैट हमारी बॉडी में जो भी बीमारी होती है, कहीं ना कहीं देयर इज ए फाइट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहाँ पर भी वही है, पॉल्यूशन में भी वही है, वायरस में भी वही है। यहाँ पर भी सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ है कि मेरे अपने शरीर के अंदर में मेरी अपने विलाई को बॉडी सेल्फ नहीं समझ रही, और सेल्फ वर्सेस जब नॉन सेल्फ की लड़ाई होगी तो इंटरल्यूकिन्स आएंगे, TNF अल्फा आएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे, M1 मैक्रोफेजेस आएंगे तो लड़ाई करेंगे, M2 आएंगे तो हील करेंगे, फाइब्रोसिस करेंगे। और जब भी मैक्रोफेजेस आएंगे तो पैराप्टोसिस होगा, एपेप्टोसिस होगा, और इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। और इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा तो मेरी दो आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये बीमारी, आई होप दिस इज प्रिडोमिनेंटली ए छोटी आंत की बीमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्रोन्स डिसीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है। और छोटी आंत में हमेशा हमें मालूम है कि छोटी आंत का डायरिया पतला पानी वाला होता है। बड़ी आंत की डायरिया में स्टूल ज्यादा निकलता है, ब्लड आता है, म्यूकस आता है। छोटी आंत के डायरिया में ना ब्लड आता है, ना म्यूकस आता है, ना स्टूल आता है, वाटरी डायरिया आता है। सो अगर आपके बच्चों को बार बार डायरिया की दवाई दी जा रही है, सारे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 12 साल की उम्र तक लड़की का हीमोग्लोबिन 12 साल की उम्र तक 12 तक आ जाना चाहिए। उस टाइम तक तो मिस नहीं करना, लेकिन मिस हो गई तो वहां पर भी ये बीमारी आराम से आपकी पकड़ में आ जानी चाहिए।
क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये आता है कि हम सब लोग सारा जो काम कर रहे हैं, कैंपेन चालू किए हैं CRP <1, हमने कैंपेन चालू करी है एट ए नेशनल लेवल, कीप योर CRP <1, क्योंकि बेसिकली ये कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस है कि लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, if your CRP is <1, you have mild, between 1 and 3 you are moderate, in between 3 and 10 you are severe. अब हम इसको तलाश रहे हैं बच्चों के अंदर में. We says that whenever there is a self versus non-self reaction in your body which is persistent, IL-6 CRP को बढ़ा देगा लिवर के अंदर से. तो क्या जैसे आप लोग नियोनेटल सेप्टिसीमिया कहते हो CRP more than 10, but that is for bacteria. We are talking about as an autoimmunity. तो क्या सीलियक डिसीज में CRP भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सही बोला है कि उसमें एक किस्म की इन्फ्लेमेशन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा ये ना हो, जरूरी नहीं है कि यू फाइंड इट इन ऑल, बट यस CRP may be increased when there is inflammation. जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि हर एक को डायरिया हो, जरूरी हर एक को जोड़ों में प्रॉब्लम हो या पेट फूले या एलोपेसिया हो, बट देर आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस. बट आपने राइटली बोला दैट इट इज अ काइंड ऑफ ऑटोइम्यून कंडीशन जिसमें आप जो ग्लूटेन ले रहे हैं वो एक एंटीबॉडी आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड होने के कारण. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं पेशेंट को जेनेटिक बोलती हूँ तो कहते नहीं डॉक्टर साहब हमारे घर में किसी को नहीं है. तो दो चीज का वर्ड्स है, एक होता है हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मतलब आपके घर में किसी को, वो हेरिडिटरी है. जेनेटिक का जरूरी मतलब नहीं है कि आपको किसी को, जेनेटिक का मतलब जीन्स होता है, और जीन्स हमारे एक डोमिनेंट होते हैं, एक रिसेसिव होते हैं, गुड जीन होता है. तो अगर किसी में अच्छा जीन है एक और एक गंदा जीन है, तो उसी तरीके से उनकी वाइफ में अच्छा और गंदा, और मैरिज के बाद दो जीन आए, तो जीन्स आर डिफरेंट, और कभी कभी म्यूटेशंस भी हो जाती है जीन्स में. तो जीन एंड हेरिडिटरी आर टू डिफरेंट थिंग्स. और ये लोग कहते नहीं हमारे में नहीं है डॉक्टर साहब, आपने तो कहा ये जेनेटिक है, तो ये जेनेटिक डिजीज कैसे हो गई. तो जो हम एक HLA देखते हैं उसको हम कहते हैं HLA DQ2 एंड DQ8. ये हम बोलते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल में भी 10% पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन सीलियक में ये नेगेटिव नहीं होते. मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू इंपॉर्टेंस की होती है और पॉजिटिव वैल्यू सीलियक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इसीलिए हम स्ट्रेट अवे जीन्स पे हम नहीं टेस्टिंग करते, हम सीरोलॉजी के बाद बायोप्सी करके उसको बिलीव करते हैं. कोई सोचते हैं कि नहीं मैं बायोप्सी क्यों कराऊं, मैंने तो भाई सीलियक डिजीज कराया. तो सीरोलॉजी जो है हमारी 95% से 97% तक है. जो हम 3 किस्म की सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं उनका नाम है TTG एंटीबॉडी, विच इज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी. ये टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी यूजुअली IgA डिपेंडेंट है. तो 2% पॉपुलेशन में IgA डिफिशिएंट होता है. तो दैट इज वाई काफी लैब्स TTG एंटीबॉडी के साथ IgA लेवल भी कॉम्प्लीमेंट्री देती है या डॉक्टर मांग लेता है. वो इसलिए मांग लेता है अगर IgA आपके लेवल बॉडी में है ही नहीं तो वो TTG एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं आएगी. बट दूसरी होती एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी, और तीसरी होती ग्लाइडिन एंटीबॉडी और डीएमिडेटेड ग्लाइडिन एंटीबॉडी. सबसे कॉमन इजी टेस्ट है TTG, क्योंकि वो एक किट का टेस्ट है. दैट मीन्स ऑब्जर्वर वेरिएशन नहीं है. आप खून डाले, कलर देखे, तो चाहे मैं जो कलर दिख रहा है दूसरे तीसरे सबको दिखेगा. जो एंटी एंडोमाइसिल है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंट है, उसमें आप देखने में मिस्टेक कर सकते हैं अनलेस आप एक्सपर्ट हो. तो दो एंटी एंडोमाइसिल इम्यूनोफ्लोरेसेंट मोर रिलायबल 98% है, लेकिन TTG इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग एजेंट बिकॉज उसमें ऑब्जर्वर वेरिएशन नहीं होती है. तो हम मरीज को ये बोलते हैं देखो ये 95% श्योर बोल रहा है, हम 100% श्योर नहीं है. 100% श्योर होने के लिए इस टेस्ट के साथ हम बायोप्सी करेंगे और उसको बोलेंगे. इसके साथ साथ थोड़ी से कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर्स जो इस प्रकार की गाइडलाइन है यूरोप में. ना यूरोप में ऐसे होता है कि डूइंग एन एंडोस्कोपी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड स्पेशलिस्ट नहीं है.
अनलाइक इन इंडिया। आपके फिर भी आजकल मैंने ही ऑलमोस्ट 30 ट्रेनिंग्स कर दिए हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड चले गए हैं। आई बीन ट्रेनिंग पीपल फ्रॉम 2008 onwards. So initially I used to train 1, then 2, now 3 to 4 trainees I do annually. So they have gone to different parts of the world, and then they are able to ensure that these facilities are available in most parts of this, because this is a diagnosis which is lifelong. उसमें मैं गलती I would not like to make. I can't tell मरीज को कि भाई मैं ना 98% श्योर हूँ, 2% में गलत हो जाऊंगी. So patient will say for me it is, वो 2% के लिए तो 100% आप गलत हो गए. तो इसीलिए serology combined with biopsy is always a better thing that you do. और biopsy में हम classification करते हैं MASH ABC और MASH 1 2 3. MASH 1 borderline है, 2 जब MASH 3 हो जाती है तो हम very definite diagnosis करते हैं, और MASH 2 है तो हम positive serology 1 या 2 के साथ करते हैं. लेकिन यूरोपियन में वो बोलते हैं अगर आप एंडोस्कोपी नहीं कर पा रहे तो आपकी 2 सीरोलॉजी मोर देन 10 फोल्ड इंक्रीज हो, आपकी जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव हो, तब करें. दैट कम्स क्लोज टू बायोप्सी. बट इफ आई एम गिवन अ चॉइस, ऑल एक्सपर्ट्स इन इंडिया जो हमारी कंसेंसस होती है उस पे हम लोग बिलीव करते हैं दैट वी आर ऑल गोइंग टू बिलीव इन डूइंग अ biopsy that is most informative besides serology, which is useful for screening. और आजकल screening test almost 700-800 रुपए का है, TTG IgA antibody, and maybe 200 रुपए तक another IgA level आ जाएगा. तो it is worthwhile, जो मैंने आपको बोला, अगर आपको शक हो तो ये टेस्ट करा लेना चाहिए. So I'll come back to some more basic questions. इंडिया एक जुगाड़ कंट्री है, तो क्या ऐसे लोगों में जहां पे आप क्लिनिकली सीलियक लग रहा है, क्या आप उसको वीट ऑफ करके भी देख सकते हैं सिम्टम्स में कि खून बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? क्या ऐसा भी जुगाड़ जहां पे टेस्ट अवेलेबल ना हो या 1000 रुपए उसके लिए ज्यादा हो? तो जैसे हमने बहुत सारे जुगाड़ निकाले कोविड में, तो ऐसा क्या जुगाड़ ऐसे लोगों में वीट ऑफ करके भी दिया जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि जनरली जब ये हुआ था तो मैंने काफी सारे पेशेंट्स देखे जो बेचारे वीट ऑफ करे हुए थे. आपको ये समझना चाहिए कि हमारी स्टेपल डाइट भी वीट है. तो जब मैं एक किसी को वीट बंद कर देती हूँ और अगर बैलेंस डाइट नहीं दे पा रही हूँ और मैं दूसरी चीज करेक्ट नहीं दे पा रही हूँ, तो बाकी की चीजें आर ऑल्सो लिटिल एक्सपेंसिव एंड बैल न्यूट्रिशन होने का डर है. तो मेरे हिसाब से आई वुड बी हैप्पी एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाना चाहिए विच इज सीरोलॉजी रादर देन एक जुगाड़. इस पे मैं सहमत नहीं रहूंगी और शायद ऐसा क्यों होगा दोस्त, बिकॉज ये टेस्ट आजकल पैन इंडिया हर लैब कर रही है बिकॉज इट्स अ स्मॉल ELISA किट टेस्ट. कोई ऐसी बड़ा टेस्ट नहीं है कि नहीं मिलता हो किधर, इवन स्मॉल टाउन में. नीलम जी कह रही हैं कि ये 1% लोगों को हो सकता है, तो इसका मतलब है दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीलियक डिसीज हो सकती है. और अगर ऐसा है तो इस वक्त में जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फटाफट शेयर करें वीडियो को. बाकी की बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं क्योंकि और लोग भी ज्वाइन कर सकेंगे और इसको प्रोग्राम को देख सकेंगे उसके साथ में. So I will now come back to, before I come back to the treatment part and how to live a life living with celiac disease. मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने एक कैंपेन चालू करी है, उसका नाम है नाई दर्जी कैंपेन. नाई दर्जी कैंपेन, दर्जी मीन्स टेलर. वो बताएगा लोगों को कि तुम्हारी पेट की चौड़ाई ज्यादा है. So we are training them to tell them that abdominal circumference तुम्हारा ज्यादा है तो भाई तुम्हारे को डायबिटीज होने वाली है, तुम्हारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तुम्हारे को ये है. So abdominal circumference के लिए we have started a campaign जहाँ पे हम इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और नाई को ट्रेनिंग दे रहे हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस की. आप जाके देखो यहाँ पे काला तो नहीं है, यहाँ काला तो नहीं है, यहाँ काला तो नहीं है, पीछे काला तो नहीं है, स्किन टैक्स तो नहीं है, भाई तेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है. तो उसी प्रकार से सीलियक के लिए क्या बना सकते हैं?
राइट, सीलियक इतना अच्छा बोला, कौन आदमी वेरी ऐसा है नाइस। जो नॉन राइट, डॉक्टर सीलियक डिसीज को पकड़ सके? राइट। तो आपने नंबर 1, जब वो टॉडलर है, छोटा, मीन्स लाइक 3 to 5 years में, अगर आपके बच्चे के हाथ पतले हैं और आपका बच्चे का पेट ऐसे बाहर निकला हुआ है, जिसको मैं बोलूं प्रोट्यूबरेंट, तो दैट इज नंबर 1, कि तोंद बाहर निकली है एक बच्चे की, जो ओवरऑल मोटा नहीं लग रहा है, एक्चुअली छोटा है, कमजोर है, लेकिन पेट बाहर है, दैट इज नंबर 1। सेकेंड, मैं बोलूंगी, माँ को पूछो, मैं पूछती हूँ, आपको कभी ऐसे लगता है कि जितना खाता नहीं है उतनी टट्टी करता? दैट मीन्स लार्ज स्टूल। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मदर कहती, हाँ डॉक्टर साहब, मैं हमेशा सोचती हूँ इतना खाता नहीं है, इतनी टट्टी कैसे करता है? दैट मीन्स उसको हजमा हो ही नहीं रहा। और दूसरा मैं बोलती हूँ, पूछती हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन अडल्ट को, आप जितनी पोटी करते हो, नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक बच्चा 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से, और अडल्ट 200 ग्राम के करीब करता है, तो 20 किलो के ऊपर आप करो। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे में आपका बच्चा 200 ग्राम से ज्यादा टट्टी कर रहा है, या आपसे ज्यादा टट्टी कर रहा है, या उतना खाता नहीं है जितनी टट्टी कर रहा है, या पेट बाहर निकला है और खाता अच्छा है, खाता है लेकिन इसको लग नहीं रहा है, तो पहली चीज आप उसे सीलियाक समझे। और मैं जब आई थी इंडिया में बहुत पहले ट्रेनिंग करके, मोर देन 2 decades बैक, तो मैं देखती थी कि लोग, जो छोटे लोग होते थे, फल नहीं रहा, उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग, इतने बड़े बड़े टेस्ट हार्मोन्स के करते थे, और मैं आके सिर्फ पीटीजी टेस्टिंग करके, मेरे से पहले उसी हॉस्पिटल में 20 साल में कभी इतने डायग्नोसिस नहीं करे, और मैंने 100 पेशेंट 1.5 साल में डायग्नोज करे थे। उस पेशेंट में आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 to 2003 के बीच में। तो एवरीबडी वाज शॉक कि ये 3 साल में 100 मरीज कैसे कर दी। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, आई सीज व्हाट द ब्रेन नोज। अगर ब्रेन को नहीं पता है तो आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या है। तो दैट इज द मेन मुद्दा। सिंपल चीजों में मैंने यही सवाल पूछे कि क्या आपकी, यही जो आपको 4 सवाल बोले, आपका बच्चे का पेट बाहर है, क्या वो पोटी इतना खाता नहीं है, ज्यादा करता है, आपसे ज्यादा टट्टी करता है, क्या आपको लग रहा है फल फूल नहीं रहा है, क्या आपको लग रहा है। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। वो बोलती है खाता इतना लग ही नहीं रहा है। These are the ones you should think तो of मैं seeing. इसको सिंप्लीफाई करके समराइज करना चाहूंगा। तो जी, अगर आपके बच्चे को सलमान खान बनने का शौक है, लेकिन वो डरता है क्योंकि उसकी मसल की स्ट्रेंथ नहीं बन रही, क्योंकि तोल निकल आई है, सार्कोपीनिया हो रहा है, तो सोचो कुछ गड़बड़ है। नंबर 2, अगर आपका पेशेंट बोलता है, अगर कोई माँ बोलती है, अरे मेरे बच्चे को तो खाता लगता ही नहीं है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे को तो खाता लगता नहीं है। नॉर्मली ये शादियों के बाद में सासें बोलती हैं बहू को कि तेरे घर में तो लोग तेरे को कुछ खिलाते नहीं थे, मैं तेरे को खिला खिला के मोटी करूंगी। लेकिन अगर बचपन में ऐसा हो रहा है और माँ बोलती है कि तेरे को खाने पीने का तेरा तो लगता नहीं है, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताया, खाने से ज्यादा अगर आपको मोशन होता है तो सीलिएक के बारे में आप सोचो। नाउ कमिंग बैक टू 2 सेक्शंस, जब अगर मान लीजिए किसी को सीलिएक है तो इलाज क्या करेंगे, क्या चीजें बंद करेंगे और क्या चीजें चालू रखेंगे। और आखिरी में मैं आऊंगा कि किन लोगों को सीलिएक के बिना भी गेहूं नहीं देना चाहिए। वो एक लास्ट होगा जिसके लिए बहुत लोग सुनने आए हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि सीलिएक तो मेरे को नहीं है, लेकिन फिर भी गेहूं खाऊं कि नहीं खाऊं। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सीलिएक के लोग गेहूं कैसे अवॉइड करें, कैसे बंद करें। राइट। तो फर्स्ट चीज, डायग्नोसिस हमने बता दी, सारे सिम्टम्स क्या होते हैं जो थोड़े लेट ज्वाइन करें। दे कुड बी रिलेटेड टू जीआई सिम्टम्स जो हमने बताया, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, nausea, pain abdomen, not growing well, or related to other factors जो कि anemia, alopecia, joint problems, nail problems, neurological problems, seizures, all these types of variety of problems, amenorrhea, infertility, all this I talked about कि ये सब हो सकता है। सेकेंड, मैंने बोला डायग्नोसिस के लिए एक सीरोलॉजी टेस्ट है जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म टीटीजी-आईजी एंटीबॉडी या एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी। कंफर्मेशन आपकी एंडोस्कोपी और बायोप्सी से होगी, डिओडनल बायोप्सी जिसमें विलिस एट्रोफी को देते हैं। तो ये हमने बात कर चुकी है मोटे मोटे। माइल्ड इफ्स एंड बट्स एक्सपर्ट्स के लिए रख दे।
दैट इज अ टाइम यू कैन कंसल्ट एन एक्सपर्ट हु विल गाइड यू। अब आया तीसरा कि अगर आप डायग्नोस हो चुके हैं, अंदाजा मत करिए, क्योंकि ये डायग्नोसिस ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँ चल 6 महीने खा ले। मेरे को लोग आके कहते डॉक्टर साहब मुझे तो सीलियाक डिजीज बोली थी, 2 साल के बाद मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैंने मेरे नेबर को भी यही बोला है। तो पहले समझिए कि उसकी डायग्नोसिस ही गलत थी। अगर वो सीलियाक है तो वो लाइफ लॉन्ग डिजीज है। सीलियाक या तो वो थी नहीं, जो आपको लग रहा है वो आउटग्रो कर गया है, बिकॉज सीलियाक डिजीज है, मैंने बताया एलर्जी नहीं है कि आपको थोड़े दिन है और आप आउटग्रो करो, नो, यू कांट आउटग्रो सीलियाक डिजीज। अगर आप नहीं खाए तो ठीक है, अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वार करेगी। जरूरी नहीं है कि डायरिया और पेट फूले, कुछ और तरीके से वार करे, सर दर्द, माइग्रेन, ये भी हो सकता है। सो दैट इज नंबर 1। सो इसीलिए डायग्नोसिस करना मस्ट है। जब आपका डायग्नोस हुआ, मैंने बताया था ये उंगलियां जो है ये कट गई है, तो जब तक ये उंगलियां बनेगी 6 हफ्ते से 3 महीने तक लग सकते हैं। तो उंगली के टिप पे होता है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम होता है जो दूध को डाइजेस्ट करता है। तो जब कट जाती है तो लैक्टेज एंजाइम नहीं है, तो टेम्पररी मैं आपका दूध बंद करूंगी 6 हफ्ते से 3 महीने तक, ताकि आप खाओगे भी दूध, आपके शरीर को लगेगा नहीं, वो नीचे चले जाएगा, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम तो है ही नहीं। जैसे ये विल्लाई उगेंगी, लैक्टेज एंजाइम आएगा, तो 3 महीने के बाद आप फुल, 6 हफ्ते के बाद आप पार्शियल शुरू कर सकते हैं। दैट इज 1। नंबर 2, जो आपके शरीर में कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ये सारे कमियां, मल्टीविटामिन की बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे आपको सप्लीमेंट्स करूंगी। ये सप्लीमेंट भी से 3 से 6 महीने तक, जब तक आपकी बॉडी में ये वापस आ जाए, विटामिन डी, जिंक, आयरन, B12, ऑल ये कमियां जो शरीर में, उनको दूर करने के लिए ये दवाइयां आपको 3 months to 6 months to मैक्स a year तक सप्लीमेंट्स चलेंगी, जब तक आपकी बॉडी रिकवर करे। तो ये हो गए 2 स्टेप्स। फाइनल स्टेप इज गेहूं। ये आपकी लाइफ लॉन्ग है, ये टेम्परेरी नहीं है। लाइफ लॉन्ग आपको गेहूं और गेहूं से बने पदार्थ नहीं खाना है। गेहूं से क्या बनता है, जैसे मैदा, सूजी, जौ, ये सब चीज आपकी गेहूं से बनती है, ये सब चीज नहीं खाना है। मोस्ट ऑफ द बेकरी आइटम्स, अनलेस आप खुद अपना बेसन लेके जाके बोले भैया बेसन के बिस्किट बना दे, अदरवाइज तो जो बनते हैं बेकरी के पास, चाहे वो केक हो, चाहे वो बिस्किट हो जाए, ऐसे सारे चीजें बेकरी के या मिठाई के मैदे से बनती हैं। तो ये मैदे के चीजा, कुलचा वुलचा, बर्गर वर्गर, ये आपको सिंपल जो मैंने बताया, गेहूं या उसमें मैदा या जौ, ये चीजों से दूर रहना है। किसी को कहते हैं ओट्स, ये जो है बार्ली, वेरी फ्यू पीपल कैन हैव काउंटर विद दैट, बट दूसरी चीज कंटेमिनेशन से भी डरते हैं हम। जैसे अरारूट है, आप खा सकते हैं, लेकिन अगर अरारूट कंटेमिनेटेड है तो आप नहीं। तो जब हम मरीज को मिलते हैं तो हम 3 चीज पूछते हैं क्या आप गेहूं बंद है, बोलता बिल्कुल बंद है। तो फिर हम उनके टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो हम बोलते हैं कि भाई आपके शरीर में गेहूं जा रहा है। तो कैसे जा रहा है, 2 तरीके से। एक होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब आप सुनना नहीं, आप खा रहे हो, छुपा छुपी खा रहे हो, गलती। तो ये कंप्लायंस या तो आपको जानबूझ के कर रहे हो या डिफॉल्ट, मतलब आपको पता ही नहीं। तवा, बेलना, चकला, पोने का कपड़ा, घी का, जैसे एक औरत होती है रोटी बनाती है, इस तरीके से डब्बा लेती है, नमक डालती है, रोटी बनाती है, उस सारी नमक में आपने अपना रोटी का हाथ डाला और नमक को खराब कर दिया। घी का चम्मच लिया, आपने घी पे लगाया और वापस डाला। अगर आपने देखा मर्तबान घी का, तो उसके नीचे काफी धूड़ा है, इसका मतलब आपने सारा घी को कर दिया। सिमिलरली तवा है ना, तवे को पोंछ के मैं बना रही हूं। जब आपको एलर्जी है, एक और कहावत है कि आप जहर अगर खाओ, 1 चम्मच खा के भी मरेगा, 1 कटोरी खा के भी मरेगा। तो इसी तरीके से जहर है, कितना आपकी बॉडी टॉलरेट करती है ये थोड़े एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ दो, बट इन शॉर्ट मैंने कहा जहर है। तो तवा, बेलना, चकला, पोने का कपड़ा, ये इसको सब अलग रखे, घी का चम्मच, नमक, कंटेमिनेशन, ये सब अलग रखे। अब आती है कंटेमिनेशन जो आपने नहीं दिया, मार्केट से खरीदा। पहले इंडिया में ग्लूटेन फ्री लिखते ही नहीं थे, काफी सोसाइटीज आई इंडिया में
जो ये इस चीज के लिए लड़ रही हैं और कह रही हैं कि नहीं आपको प्रोडक्ट्स पे लिखना है, जैसे अमेरिका या यूएस में, यूके में सब पैकेट पे लिखा होता है ग्लूटेन फ्री या व्हीट फ्री। जैसे कैडबरी को ले लो आप, मिल्क कैडबरी, अब्रॉड जाओ तो आपको मिलेगी ग्लूटेन फ्री कैडबरी, यहाँ उनको फोन करो वो बोलेंगे भैया ये ग्लूटेन फ्री, हम गारंटी नहीं लेते। तो दैट थिंग गेट्स डिफिकल्ट, वो कंटेमिनेशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उसी तरीके बेसन है, आपने एक किराने की स्टोर पे जाके बेसन खरीदा, उस किराने के वाले ने अपने बस पास ही चक्की में करा, उस चक्की में पहले गेहूं पीसा, उसके बाद उसने बेसन पीसा, उसने लिफाफे में डाल के आपको बेच दिया। आपको नहीं मालूम कि जिस चक्की में आपने पीसा उस चक्की में बेसन से पहले आटा पीसा। तो वो माँ जो चावल खिला रही है वो चावल उसी चक्की में पीस रही है जो, तो या तो आप चक्की वो लो जिस चक्की में सिर्फ दाल या आटा, मतलब दाल या चावल पीसा जाए, या खुद का एक चक्की ग्राइंडर 2-3 हजार का ग्राइंडर ले और या कूटे अपना, तो उस तरीके से करें। बाकी आप क्या खा सकते हैं, आप बेसन खा सकते हैं, मक्की खा सकते हैं, सिंगाड़ा, कुट्टू खा सकते हैं, एंड बाजरा खा सकते हैं, जवार खा सकते हैं, तो इस तरह सोयाबीन का आटा खा सकते हैं। और मार्केट में आजकल ग्लूटेन फ्री फ्लावर मिलता है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है इतना कुछ बनाने में, इतना कुछ कूट के पूरा देखने में, तो मार्केट से आप ग्लूटेन फ्री फ्लावर लें। लेकिन जैसे के कहते हैं हर एक चीज में आपको देखना है आईएसओ ब्रांड है, कौन मैं अपने घर में आटा बना दूं ग्लूटेन फ्री फ्लावर और आपको बेच दूं, वो सही नहीं है। क्या मैंने कंप्लायंट किया, क्या मैंने पूरा गुड इंडस्ट्री प्रिकॉशंस जो कहते हैं वो फॉलो किया या नहीं किया। इसीलिए अब इंडिया में भी, दिल्ली में भी काफी लैब्स आ चुकी हैं जहाँ कोई भी मार्केट से जो ग्लूटेन फ्री आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको जाके चेक करा सकती हैं, और अगर उसके अंदर निकला तो यू कैन सू दैट कंपनी कि भाई आप ग्लूटेन फ्री बोले और इसके अंदर वो जो भी लिमिटेड पार्ट्स पर मिलियन का लिखा होता है उससे ज्यादा है, तो दैट इज कंटेमिनेंट जो आप चेक कर सकती हैं। और केक है, आप बर्थडे केक बनाना चाहती हैं तो आपको देयर आर लॉट ऑफ बेकरीज, जैसे इन दिल्ली में इंडिया ट्रेड सेंटर हो गया, तो वो बेकरी में आप जाके ऑर्डर करेंगे तो वो आपके लिए ग्लूटेन फ्री बना देंगे, केक बना देंगे। और मार्केट में नेशनली भी बहुत प्रोडक्ट्स आ गए, इंटरनेशनल तो प्रोडक्ट्स थे ही थे, नेशनली भी बहुत प्रोडक्ट्स, उनके बिस्किट, उनके पास्ता, उनके नूडल्स, उनके पिज्जा, उनका सब कुछ अलग बनता है। लेकिन मेरी मदर्स इतनी इनोवेटिव है, इतनी स्मार्ट है कि वो घर में स्मार्ट पिज्जा, स्मार्ट नूडल्स, स्मार्ट ये ग्लूटेन फ्री बना लेती हैं। काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उनसे फिर वो रेसिपीज हम एक दूसरे को बांटते हैं। देयर आर बुक्स अवेलेबल, और नेट में आप चले जाओ तो रेसिपीज आपको मिल जाएगी, ग्लूटेन फ्री रेसिपीज आप वो दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा जो आप खरीद रहे हैं वो करेक्ट चीज खरीदें जिसमें कोई आईएसओ मार्क रिप्यूटेड हो, और इस तरीके की नहीं कोई अपना बना के और बेच दे। So before I come back to the last segment where we'll talk about non-gluten, जहाँ पे हम non-celiac कहाँ पे हमें गेहूं कम करना है, चीनी, चावल, मैदा, जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। बट उससे पहले लेट मी कम बैक टू नीलम जी ने क्या कहा। एक तो उन्होंने कहा है कि जो भी विटामिन कोविड में आप खा रहे हो, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, आपने घर घर के अंदर में लोगों ने कहा है कि मुझे जिंक लेना है, ये सारे वो हैं कोविड में भी आप इसलिए लेते हो क्योंकि छोटी आंत में कोविड होता है। इसलिए छोटी आंत के कोविड के कारण से जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो यहाँ पर भी आती हैं। तो इसलिए विटामिन डेफिशिएंसी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। याद रखो कोविड में जिंक लेते थे, यहाँ भी लेना है, आयरन लेते थे, यहाँ भी लेना है, विटामिन डी लेते थे, यहाँ पर भी लेना है, उसके अलावा कैल्शियम लेते थे, यहाँ पर भी लेना है। तो वो तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पड़ेगी। अब एक चीज आप याद रखिए कि बच्चों को इंडोर गेम आप लोगों ने क्या किया, सबसे ज्यादा बच्चों ने, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो इंडोर गेम्स खेले, बाहर निकल नहीं सकते थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो ज्यादातर बच्चों ने घर में टीटी की टेबल लगा ली थी, टेबल टेनिस की। तो याद रखो टेबल टेनिस की, डिसीज की लगा ली थी, तो वही टेस्ट के अंदर में भी टीटी आता है। बोले कोई बोले ये सीलिया का टेस्ट हो रहा है, बोले कुछ तो भी होता है जिसमें टीटी नाम होता है, टीटी जी है
लेकिन टीटी से आपको याद रहेगा कि टीटी करके कोई टेस्ट होता है जिससे आपको पता लगता है। और मैडम ने एक वर्ड और भी बोला टीटी का। अब टीटी को जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको वो टट्टी भी लग रहा है उसके साथ में, तो उसी तरीके से आपको याद रह सकता है कि एक सिंपल सा टेस्ट है, वो टीटी टेस्ट है। वो डॉक्टर खुद बताएंगे कि टीटी, टीटीजी, आईजीए, लेकिन एक सिंपल टेस्ट आप याद रख सकते हैं, टीटी भी। और फिर अमिताभ बच्चन को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, उनकी पोलियो की कैंपेन था ना, एक भी बच्चा ना छूटे। वही कैंपेन आपने याद रखनी है कि एक भी गेहूं का दाना मेरे अंदर ना जाए, एक भी। क्योंकि अगर आप माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हो कि माइक्रो लेवल पे भी गेहूं मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए, तो कैंपेन याद रखिए अमिताभ बच्चन की, एक भी दाना गेहूं का मेरे अंदर ना जाए, वो तकलीफ दे सकता है। नाउ वी कम बैक टू द लास्ट सेगमेंट, एंड लास्ट सेगमेंट के अंदर में हम बातचीत करेंगे कि नॉर्मली एडल्ट्स के अंदर में हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर में कई बार हम लोग बोलते हैं गेहूं मत खाओ, बाजरा ज्वार खाओ, और खासकर हम मैदे के बारे में मना करते हैं। दैट इज वन पार्ट। बिफोर दैट व्हीट एलर्जी क्या होती है वो बता दीजिए, और फिर बता दीजिए कि कुछ लोगों को, बच्चों को या बड़ों को, अगर हम व्हीट ऑफ करें, क्योंकि माँ तो हमारी ये कहती थी बेटा कि महीने में, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार एक्स्ट्रा एकादशी के दिन, साल में 4 बार 9-9 दिन व्हीट मत खाइयो, यानी कि साल में 80 दिन व्हीट मत खाइयो, तेरे को डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। बट पहले व्हीट एलर्जी और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये चीज जरूरी है, आपने जैसे बताया कि हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जो दो चीज इन्होंने बताई है, उसके साथ मैं एक और नाम लूंगी। तो सीलियक डिजीज में अमिताभ बच्चन, गेहूं का एक दाना भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि मैदा और ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इन्होंने खुद ही आंसर दिया है। बिकॉज जैसे मक्की है, मक्की का लॉन्ग टाइम लेती है ब्रेक डाउन के लिए, तो आपका शुगर का लेवल थोड़ा मेंटेन रहता है, लंबे टाइम तक चलता है, एज कंपेयर टू दीज विच आर सेट टू बी शॉर्ट। और आई थिंक जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आई ऑलवेज बिलीव की दैट एवरीथिंग इन आवर लाइफ शुड बी अ बैलेंस। कि बैलेंस मतलब जो थाली, मुझे केकी ने उसमें ये जो एनुअल इनकी मेलाज होते हैं उसमें कहा था कि डिफरेंट कलर की सब्जी, डिफरेंट कलर के फ्रूट, डिफरेंट कलर की पदार्थ, डिफरेंट कलर की गेहूं। ही वॉज राइट, बिकॉज रागी में किसी में आयरन है, कोई मिलेट्स में कोई है, तो हर एक चीज के गुण अलग अलग है। एक ही चीज आपको नहीं खानी चाहिए, ये इंडियन से ज्यादा कोई नहीं समझता है। क्योंकि जो फोटोग्राफ एक रखता था कि अपनी मेले में, जिसके अंदर वो, उसके अंदर एक फूड पिरामिड, जिसमें वो वेजिटेबल रखते थे, फ्रूट रखते थे, दही रखते थे, अलग कलर की फ्रूट्स, तो उसी में वो थोड़ा सा चावल, रोटी या रागी मिलेट्स। तो सेम चीज हम कन्वे करते हैं कि कीप अ बैलेंस, डोंट ओवरडू थिंग्स, and especially, but yes, diabetics mein chawal is also not good, so we suggest to you to take roti. So it should not be कोई ये सुन के सोचे कि भाई मैं मैदा नहीं बोल रहा हूँ तो चावल खाना शुरू करो। You need to meet your expert and get your balanced diet. लेकिन एक और कंडीशन है जो मैं बताना चाहूंगी, which is जो के ने जरा सा जिक्र किया था, नॉन सीलियक ग्लूटेन इंटॉलरेंस। दैट मीन्स कि मेरी टेस्ट नेगेटिव आता है, और डिस्पाइट दैट जब मैं खाती हूँ गेहूं मुझे सिम्टम्स आते हैं। जैसे ही मैं वो छोड़ दूं तो मेरे सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। ये एक न्यू एंटिटी, न्यू मतलब जस्ट फ्यू इयर्स, 10 डिकेड मान लें, ऐसे नहीं कि सीलियक डिजीज तो हम 80, ये सीलियक डिजीज एक्चुअली पता कैसे चली थी, वर्ल्ड वॉर 2 में गेहूं की शॉर्टेज हुई, तो काफी सोल्जर्स जो गेहूं नहीं खा पाए, वो बीमार रहते थे यूरोप में, वो ठीक हो गए। तो तब ये डायग्नोसिस हुई कि गेहूं से भी कोई बीमारी थी। जब वो शॉर्टेज हुई और गेहूं बंद हुआ तो वो सोल्जर्स ठीक हुए, और उस टाइम पर
ये सीलियाक डिजीज एंड ऑल पता चला। उसी तरीके से हम एक ये दूसरी एंटिटी बताते हैं नॉन सीलियाक ग्लूटेन की, जिसमें आपको सिम्टम्स इंप्रूव हो जाती हैं बंद करने पे। और ये थोड़ा एक्सपर्ट्स के लिए रख दें, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स to be sorted and only experts are looking into it, but over diagnosis भी नहीं करें, because मेरा जैसे मानना है कि हर एक चीज का बैलेंस रहना है। सडनली आप ये नहीं खाएं, that is also not possible unless you have a disease, then it is so it is always better कि इसके बारे में सोचें। सीलियाक बहुत कॉमन है, 1 in 100 and 1 in 150, तो इन नॉर्थ इंडिया आई मीन, तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये मैसेज दे दिए तो ये गलत नहीं है कि आप सबको कभी ना कभी अगर कुछ सिम्टम हो तो अपनी स्क्रीन कराने में कोई बुरा बात नहीं है। इसके लिए मैं हाँ कहूंगी, क्योंकि ये नॉट ओनली इन चिल्ड्रन बट इन एडोलेसेंट्स एंड इन अडल्ट्स में भी आता है। अगर आप पिक कर लिए तो चिल्ड्रन में पता कर लोगे, वरना ये बाद में पता चलेगा। So we discussed quite a lot today, and we realized we spent 45 minutes on. I just want to end by saying कि low grade systemic inflammation, जिसपे हमारी पूरी कैंपेन चल रही है CRP less than 1, कई बारी जैसे नीलम जी ने बात करी नॉन सीलियक ग्लूटेन इंटॉलरेंस, that can also be responsible for low grade systemic inflammation. अगर आपको CRP आपका 1 से ज्यादा है और आपको ना फैटी लिवर है ना आपका LDL ज्यादा है और आप ढूंढ रहे हैं कि मेरा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन लो ग्रेड, मेरा CRP 2 क्यों रहता है, उस सिचुएशन में भी आप नॉन सीलियक ग्लूटेन इंटॉलरेंस के बारे में देख सकते हैं। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट, सो उसमें हाई ग्लाइसेमिक फूड आल्सो कम्स इन, दैट मे नॉट बी रिलेटेड टू actually gluten, but that may be related to a low grade inflammation because of a high glycemic food, और जिसमें से मैदा सबसे पहले निकल के आता है। ये थी नीलम मोहन जी, BC रॉय अवार्डी, एन एक्सीलेंट स्पीकर। बहुत रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन्होंने ट्रांसप्लांट के ऊपर में, पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट के ऊपर में। जाते जाते सिर्फ एक मैसेज दे दीजिए, और वो ये है कि सीलियक डिसीज में वैक्सीनेशन जरूरी है। कोविड का उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल। अभी तो गवर्नमेंट ने 18 के ऊपर अभी एडल्ट्स को देनी है, एंड आई एम श्योर वर्ल्ड वाइड वी स्टार्टेड फ्रॉम 12 to 18 आल्सो, एंड वी सी नो रीजन व्हाई द चिल्ड्रन शुड बी स्पेड, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम व्हिच इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो आफ्टर एडल्ट्स आई एम श्योर चिल्ड्रन विल कम इनटू दिस। एंड लेकिन अभी सरकार ने उस 20 की लिस्ट में सीलियक को नहीं डाला है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सीलियक डिसीज को इन चिल्ड्रन आई थॉट यू आर सेइंग यस, अगर सीलियक कंट्रोल्ड है तो उस लिस्ट में नहीं आएगी, लेकिन सीलियक के सगा काफी लोगों को डायबिटीज और थायराइड एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, और अगर आपको डायबिटीज है तो दैट इज बीन इंक्लूडेड, बट राइट नाउ सीलियक इज नॉट, बिकॉज अगर सीलियक को आप गेहूं बंद करेंगे तो ब्यूटीफुली कंट्रोल हो जाएगी, अगर आप गेहूं खाएंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगी। So that's all for today. Let me thank Neelam ji to be here and making this subject so interesting. इस वीडियो को, लिंक को आगे फॉरवर्ड जरूर करें, शायद किसी बच्चे की जान बच जाए, शायद किसी माँ का लाडला जिससे माँ परेशान रहती है, वो लाडला अगर ठीक हो गया और आप माँ बाप को एक खुशी दे पाओगे। विमेन्स इंटरनेशनल डे आ रहा है, इससे अच्छी गिफ्ट क्या होगी कि विमेन को, औरतों को बताइए कि हर 100 में से एक को ये बीमारी हो सकती है, और उसको अगर आपने नॉर्थ इंडिया के अंदर में ये बीमारी हो सकती है। 1 in 150 और 1 in 100, so 1 in 150 is a very big number। उस सिचुएशन में नॉर्थ इंडिया के अंदर में आज ही इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और बोलो नीलम जी ने ये कहा है। नमस्कार। That's all for today. We'll be back tomorrow at 7 p.m. with another show. Keep watching Med Talks with Dr. KK. Thank you. Hope to see you on Women's Day on some nice shows. Absolutely.